गुड मॉर्निंग क्लास 11। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में मिल रहे हैं आपकी डिमांड के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। ओके, सो स्टार्ट कर रहा हूँ 3.5 से जेट प्लेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, जेट प्लेन की वैल्यू आप अपनी बुक में से इसकी क्वेश्चंस को रीड करना। जेट प्लेन की स्पीड ऑफ जेट प्लेन दे रखा है v1 5 किलोमीटर पर आवर and relative velocity of produce with respect to jet plane v2 minus c1 is equal to minus 1500 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। सो फाइंड आउट द वैल्यू v2 वैल्यू जो आपकी फाइंड करनी है, ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जेट प्लेन के अंदर से जो गैस निकल रही है उसकी वैल्यू निकालनी है। सो v2 इज इक्वल टू v1 माइनस 15। v1 की वैल्यू को पुट अप करेंगे क्योंकि जेट प्लेन की स्पीड दे रखी है। ये रहा आपका जेट प्लेन और इस जेट प्लेन की जो स्पीड दे रखी है और इस जेट प्लेन के अंदर से जो गैस निकल रही है उस गैस की वैल्यू v2 फाइंड करनी है और v1 वैल्यू आर गिवन। ओके, सो v2 फाइंड करना है तो v2 को फाइंड करना है तो 500 माइनस 15 में से माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर नेगेटिव साइन सो दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द compress is opposite so that the jet plane, so speed of produce of compressed is with respect to ground is the 1000 kilometer per hour. Okay, second question यानी कि 3.6 वाला क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है। वो जो है कार की मूविंग से और कार की इनिशियल वेलोसिटी 126 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 5/18 से ने मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एकदम ही स्पीड लगाने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और डिस्टेंस कवर करती है कार वो 200 मीटर्स। देन फाइंड आउट द रिटार्डेड मोशन, देन फाइंड आउट द रिटार्डेड एक्सेलरेशन। So now using the formula v square minus u square is equal to 2as. Put up the value v is equal to 0 minus u is equal to 35 का square is equal to 2a 200. Okay, a is equal to minus 35 into 35 upon 2 into 200. तो a की वैल्यू minus 49 upon 16 डिवाइड करेंगे minus 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और ये तो आपके पास में रिटार्डेड एक्सेलरेशन आ गया। रिटार्डेड एक्सेलरेशन के साथ साथ में आपको टाइम रिक्वायर्ड कि कितने टाइम में वो स्टॉप होगी। So now using the Newton's first equations required the time t is equal to v minus u upon t, v minus u upon a. So t is equal to v value 0 minus 35 upon minus 49 upon 16 को डिवाइड किया तो हमारे पास में 11.43 सेकंड के अंदर कार स्टॉप हो जाएगी। ओके, सो 2 क्वेश्चंस आप राइट डाउन करें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं। Yes, now next question 3.7. 3.7 are given through figure. This figure two trains A and B. A and B both are the same length 400 meter 400 meter and goes to the same direction VA and VB. Okay, it means left to right direction में move कर रही है। So both train are moving in the same direction with the same speed of the 72 kilometer per hour. So relative velocity of B with respect to A, the VB minus VA is equal to 0 because both are the same velocity 72. So cancel out. Okay, now A value is the acceleration value is the 1 meter square, time is the 50 second, initial velocity are 0. Then find the distance, how many distance are covered the train B to A. So now x is equal to A. So first of all write down the equation of the Newton's second equation. S is equal to ut plus half at square. Now x is equal to x, s is equal to replace x is equal to 0 into 50 plus half into 1 into 50 square. So x is equal to 50 upon 50 by 2. It means multiply करेंगे तो 1250 it means 1250 meters is the x value displacement value. Okay my dear friends, so write down the 3.7 and now next question 3.8 is again
Yes, now 3.8 questions is very interesting question. There are given the three trains. Okay, You can see in my screen B train here and A train here and C train opposite direction. So you can see the BA in B train की जो velocity है BA 36 किलोमीटर it means 10 meter per second. VB and VC are both at the same velocity are same velocity but the opposite direction. So VB is the 54 kilometer per hour. So it means 15 meter per second, and BC is the negative direction because the opposite direction. So minus 54 kilometer per hour is equal to minus 15 meter per second. Okay, B is decided to overtake to A and C is decided to the C डिसाइडेड कर रहा है, B डिसाइडेड कर रहा है कि A को ओवरटेक कर जाऊं और C अपोजिट डायरेक्शन में आए तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के केस होंगे. Okay, so first about the relative velocity of C के regarding is relative velocity of C with respect to A. तो VCA. ओके, एक और चीज यहाँ पर फाइंडल है कि बी ए की जो डिस्टेंस है 1000 मीटर और सी ए से जो डिस्टेंस है वो भी 1000 मीटर, यानी कि सेम डिस्टेंस के ऊपर जो ट्रैवलिंग हो रहा है, लेकिन बी डिसाइडेड कर लेता है कि वो ए को ओवरटेक करे और आगे से सी आ रहा है. इट मींस एक्सीडेंट होने के काफी चांस है, लेकिन कितने डिस्टेंस के ऊपर यदि ब्रेक लगाया जाए तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, उसी को लेकर के ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए, सो VCA वेरी VC माइनस VA, VC की वैल्यू माइनस के 15 और माइनस के 10, इट मींस 20 माइनस 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है. और टाइम दैट द C रिक्वायर्ड टू जस्ट क्रॉस A, यदि C A को क्रॉस करेगा तो उसका टाइमिंग क्या रहेगा, तो 1 किलोमीटर है क्योंकि 1000 मीटर है, इट मींस 1 किलोमीटर. और BC की वेलोसिटी 25 से डिवाइड करेंगे दिन के 40 सेकंड में, और मैंने आपसे कहा था टाइम कभी भी रिकॉर्डेड नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर टाइम की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. तो ये केस किसके लिए है, C के लिए है. आपके पास में ये केस. अब जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे B के लिए केस करेंगे. And now B case, B must overtake A in time less than 40 सेकेंड, यानी कि B ओवरटेक करेगा A को 40 सेकेंड की मिनिमम टाइम में. सो दैट तो फॉर कार B we have VBA, VB minus VA, V की वैल्यू 15 दी minus 10 5 मीटर पर सेकेंड, S is equal to 1 किलोमीटर, it means 1000 मीटर, and U is equal to 5 meter per second, T is equal to 40 second. Then find out acceleration कि कितने टाइम से या किस स्पीड को स्टॉप करें कि कहीं पर भी एक्सीडेंट के केस नहीं हो. इसलिए S is equal to UT plus half AT square. S की वैल्यू को पुट किया 1000, 5 into 40 plus half A 40 square. इधर here is the 1000 is equal to 200 plus 40 into 40 by 2 A square. तो 100,000 minus 200, and here is the multiply 800 A is value 1 meter per second square minus. ओके, इसलिए यहाँ पर A is equal to 1 meter per second square आ रहा है. इतने टाइम में अवॉइड किया जा सकता है BC को एक्सीडेंट होने से रोकेगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग कार का जो क्वेश्चन था 3.9, ये अपनी कॉपी में आप राइट डाउन कर लीजिए. मैं 3.9 को राइट डाउन करने के 3.8 को राइट डाउन करने के बाद मैं 3.9 पर डिस्कस करने वाला हूं. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 3.9 आपसे कह रहा है कि टू टावर्स A एंड B, और टावर्स में A और B से एक बस है, वो A टावर से B टावर की ओर जा रही है V वेलोसिटी से. उस बस की रिगार्डिंग में या बस के साथ के रिगार्डिंग में एक मैन जो है साइकिलिंग के साथ में 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है. ओके, दोनों फिगर दे रखे हैं कि ये जा रहा है, तो ऑब्वियसली बस उसको ओवरटेक करेगी और ऑब्वियसली बस इसके रिगार्डिंग में जाएगी. तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि बस जो है A टावर से B टावर पे जा रही है, अगेन B से A पे जा रही है. जब साइकिल वाला उसको कहाँ मीट कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, कितना टाइम लगाएगा, ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है. सो लेट मी सी इन माय स्क्रीन प्लीज द लेट द स्पीड ऑफ द ईच बस इज द V किलोमीटर पर आवर. Now first case for the bus going from A to B, the relative speed of a bus in the direction of motion of the man
v वेलोसिटी है और साइकिलिंग की है वो 20 है, तो ऑब्वियसली v बस स्पीड से जाएगी, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, इसलिए v माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। टाइमिंग दे रखा है 18 मिनट्स में, तो डिस्टेंस कवर कितना होगा, तो सिंपल सा है, डिस्टेंस के फॉर्मूले में वेलोसिटी इनटू टाइम, सो v माइनस 20 इनटू 18 मिनट्स, 18 अपॉन 16 किलोमीटर। Since a bus leave the town after every t minutes, then the distance cover v into t upon 60, तो इक्वेशन बनती है हमारे पास में कि v minus 20 into 18 upon 60 vt upon 16, ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में आ गई है। सेकंड इक्वेशन आपके पास में जो आ रही है, वो सेकंड इक्वेशन जो आपके पास में है वो यहाँ पर रहेगी आपके पास में, उसको मैं राइट डाउन करवाऊंगा। Now second case is the bus going from B to A. Okay, so relative speed of bus in the direction opposite. पहले तो A to B गई, फिर B to A आए, तो अपोजिट डायरेक्शन, तो मोशन ऑफ द मैन, तो यहाँ पर हमारा मैन का जो मोशन होगा उसके अंदर जो रिलेटिव है उसको प्लस करेंगे, v प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। Bus going in this direction go past the cyclist after every 6 minutes. Okay, पहले 18 मिनट्स था, अब 6 मिनट, तो v plus 20 6 upon 60 is equal to vt upon 60, ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगली और इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हम, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट बाय सेकंड, एंड वी हैव, तो आपके पास में वहां पर v माइनस 20 था। ओके, v माइनस 20 और ऊपर क्या था बताइए मुझे, v माइनस 20 अपॉन इंटू 18 था। वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। और यहाँ पर v प्लस 20 और 6 अपॉन 60, वेरी गुड। और वहां पर भी vt अपॉन 60 और यहाँ पर भी vt अपॉन 60, दोनों ही केस थे। अब इन दोनों केस को हम अपन यहाँ रीड कर रहे हैं, तो ध्यान से देख लेना कैसे कैसे केस आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो हमने यहाँ पर vt कैंसिल कर दिया, 60 कैंसिल कर दिया, तो v माइनस 20 और ये बन गया 18 और यहाँ बन गया v प्लस 20 और ये बन गया 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 1। राइट डाउन कर लीजिए। ओके, और इसको भी राइट डाउन कर लीजिए, इसको फिनिश कर दीजिए। नाउ 6 की टेबल से इसको कट कर दीजिए, तो ये कट हो गया 3 टाइम्स। अब 3v माइनस 20 और v प्लस 20, सो ये हो गया 3v माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20। सॉल्व कर सकते हैं ना आप सब जने। 3v माइनस v इज इक्वल टू 20 प्लस 60, ये हो गया 18, ये हो गया 2v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 18/2, इट मींस 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आपने फाइंड की है, ये बस की है। और इसको चाहें तो आप इसको लिखेंगे किलोमीटर पर आवर में लिखना चाहेंगे, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर में आ रही है, ये आ गई बस की वेलोसिटी। अब इसको राइट डाउन कर लीजिए, साथ ही इसी इक्वेशन की v की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा, इसलिए इक्वेशन नंबर सेकंड को यूज करेंगे। राइट डाउन कर लिया। ओके, now using equation 2 and we have the equation 2 था v plus 20 is equal to 6 upon 60 is equal to vt upon 60, यही था ना, ये आपके पास में थी वैल्यू, तो 60 को कैंसिल आउट कर दीजिए और ये कैंसिल हो गया। फिर v की वैल्यू को पुट कीजिए, 40 प्लस 26 और 40 प्लस t। ओके, यहाँ पर आपके पास में 16 इंटू 6 इंटू 4 0t, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, तो 36 अपॉन 4t की वैल्यू आ रही है। और t की वैल्यू को जब फाइंड करेंगे तब हमारे पास में 36/4, तो ये आपके पास में 9 मिनट आ गई। ओके, तो 9 मिनट जो टाइम आ गया है ये आपके पास में आ गया। सो माय डियर फ्रेंड 3.9 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
Okay.